ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜੁਗਲ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਰੂਪ ਗੁਰਮੁਖ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਹਿਰਾਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ, ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਕੁਝ ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਦੂਸਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੁਪਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕਾ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ, ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪਤੀ ਤੋਂ, ਪਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਛੁਪਾ ਲਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹੋਂਠ ਹਿਲਾਇਆ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਸਭ ਬਿਦ ਆਗਿਆ ਜਾਣੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣ ਲਿਆ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਕੀ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ। ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ, ਆਸਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਕੀ ਪਰਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮੂਰਖ ਆਦਮੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਰਮ ਕੇ ਮੂਸੇ ਤੂੰ ਰਾਖਤ ਪਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਮ ਦੇ ਠੱਗੇ ਹੋਏ ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਪਰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਭਰਮ ਕੇ ਮੂਸੇ ਤੂੰ ਰਾਖਤ ਪਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਰਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਦਰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬਣਨ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਪਰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
दुनिया नूं बुद्धू बनाया जा सकता है। सौखा काम है, कोई बहुत औखा नहीं है। लोग जो देखना चाहते हैं उन्होंने वो दिखाओ, लोग बस वो उलझे रहते हैं। लोग सच नूं झूठ ते झूठ नूं सच जान लेंदे ने। इसलिए दुनिया कोलों किसी भी चीज़ नूं लुकाउणा इन्ना औखा नहीं है। बहुत सारे लोग ने वो बड़े बड़े पाप करते हैं, बड़े बड़े औगण कमाते हैं, पर वो अपने आप को दुनिया के सामने बहुत धर्मी, बहुत नेक पुरुष, भले पुरुष की तरह पेश करते हैं, तो लोग मनी जाते हैं कि हाँ जी बंदा बहुत भला आदमी है। इसलिए दुनिया के कोलों किसी चीज़ को लुकाया छुपाया जा सकता है, दुनिया को बुद्धू बनाया जा सकता है। कंपनियां बनाउंदियां ने ना अपने प्रोडक्ट बेचने लिए, लोग बनते हैं, असी सब बनते हैं उन्हां दी एडवरटाइजमेंट देख के, उन्हां दा चीज़, उन्हां दी जिहड़ी मार्केटिंग सैट है ना, कि मार्केटिंग करन दा ढंग असी उसनूं कदे जान ही नहीं पाते, असी कदे समझ ही नहीं पाते, क्योंकि हर चीज़ के पिछे मनोविग्यान काम करता है। तो असी लोग उन्होंने भरम, उन्होंने चक्कर में उलझ जाते हैं। इसलिए इसनूं जान लवो कि जरूरी नहीं है कि जो असी मनीए वो सच ही होवे, जो असी मनते हैं वो सच ही है, इस गल का कोई दावा नहीं है। पर दुनिया इत्थे ऐसी ही है, ये झूठ नूं सच ते सच नूं झूठ समझ के बैठी हुई है। लोग भरम विच पए हुए ने, पर्दा रखते हैं, पर वाहिगुरू तो पर्दा नहीं रखा जा सकता। उस परमेश्वर तो, उस अकाल पुरख तो किवें पर्दा रख लवांगे असी किवें उस परमेश्वर तो पर्दा रखांगे? असी उहदे तो पर्दा नहीं रख सकते, उहदे कोलों लुका नहीं सकते। गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज, छोटी उम्र है उन्होंने, पर उन्होंने कोल जो जोत है वो गुरु नानक साहिब महाराज जी की, वो साक्षात गुरु नानक का रूप, वाहिगुरू का स्वरूप ने गुरु हरकृष्ण साहिब। सतगुरु जी के दर ते एक आदमी पहुँचता है, सतगुरु ने उसनू देखा तो सिखां नू हुक्म किया कि इस बंदे नू दरबार विच आउण नहीं देना। गुरु कदे किसी नू रोकदा नहीं, पर शायद पहली दफ़ा ऐसा होया होवेगा कि गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी ने कहा कि यह बंदा अंदर नहीं आना चाहिए। सिखां ने उस तरह किया, जदों वो दरबार विच एंटर होने लगा तो गुरु साहिब के हुक्म नाल सिखां ने उन्हें रोक दिता। जदों उसनूं रोक दिता, सारियां संगतां आ रही ने, मत्था टेकदियां, बैठदियां, गुरु के वचन सुनदियां, पर इस नूं उत्थे ही रोक दिता गया। बड़ा हैरान हुंदा है कि मैं ऐसा कुछ करिया नहीं कि जिस करके मैनूं रोक दिता गया होवे। हैरान भी हो रहा है, कई तरह दीयां विचारां उहदे मन विच चलदियां, कई तरह दीयां। जदों सारी संगत बैठ गई दरबार विच, ये उस तरह दरवाजे ते खड़ोता है। गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज नूं उत्थों खड़ा ही बेनतियां करदा है कि मैनूं किरपा करो, अपनी शरण विच आउण दिओ। उच्ची उच्ची बेनतियां करदा है। गुरु साहब ने मना कर दिता, इशारा किया कि नहीं, तुसी अंदर नहीं आ सकते, तुसी अंदर आउण दे हकदार नहीं। सारी संगत भी हैरान, सिखां ने भी पूछा कि सच्चे पातशाह ऐसा कदे नहीं होया कि गुरु दर ते किसी बंदे नूं आउण तो रोकिया गया होवे। इत्थे तां हर एक दे लई ये दर खुला है, इत्थे तां दुश्मन नूं भी जी आया आख लिता जांदा है।
ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਇਹ ਰੋਪੜ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਖਿਮਾ ਮੰਗੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਾਰਨ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬੜੇ ਭੁਲੱਕੜ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪੁੰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਪ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਗੁਨਾਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਜਰਾ ਯਾਦ ਕਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਉਹ ਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸਾਧੂ ਜਨ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਐਸਾ ਪਾਪੀ ਆਦਮੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਈ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਿਆ। ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਰਗੀ ਸਹੂਲਤ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੜਕਾ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧੀ ਜੰਮੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਵੇਰਾਂ ਉਸਨੇ ਐਸਾ ਕਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀ। ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਕਰਮ ਬਾਰੇ ਭਲਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿ ਭਰਮ ਕੇ ਮੂੰਹ ਸੇ ਤੂੰ ਰਾਖਤ ਪਰਦਾ, ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ, ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਠੱਗੇ ਹੋਏ ਆਦਮੀ ਤੂੰ ਪਰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਦਾ ਪਾ ਲਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ, ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਚਲਾਕ ਬੜੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ, ਕਿਸੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵਾਲੀ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗਰਭ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੜਕਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਨਾ। ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ, ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਰਭ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ,
लागे रहन वाले सके भाई नूं नहीं पता चलिया। पर सतगुरु कहंदे भरम के मूसे तू राखत परदा, हे भरम विच फसे हुए आदमी तू पड़दा रखदा है। पाछे जी की मानी, सतगुरु कहंदे अपने मन मगर लग के, पर आगे प्रभ मेरे सब विद आगे जानी, पर प्रभु मेरे ने सब विद जान ली। उन्हें साडी हर हरकत जान ली, उन्हें साडा चंगा भी, उन्हें साडा मंदा भी। वो साडा चंगा भी जान गया ते साडा मंदा भी जान गया। तुसी लुक के चंगा करो वो तां भी देखदा है, तुसी लुक के मंदा करो वो तां भी देखदा है। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज दा सिख होया एक भाई जैता, जगता भी उहदा नाम इतिहास में आउंदा है। गुरु साहब पटना पहुंचे तो वह भाई जगते ने बेनती की कि सतगुरु जी मेरे घर चरण पाओ। गुरु साहब ने कहा जरूर, पर उतों के सिखा ने कहा कि सतगुरु जी इस बंदे के घर ना जाओ, ये बंदा कदे सेवा नहीं करता, इस बंदे नूं कदे असीं जप तप करदिआं नहीं देखिया, इनू दान पुण्य करदिआं असीं कदे नहीं देखिया, इसलिए साडी गुजारिश है कि तुसीं इहदे घर ना जाओ। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने कहा कि हुण तुसीं मैनू दसोगे कि किहड़ा बंदा जप तप करदा है ते किहड़ा नहीं करदा, तुसीं दसोगे। असीं लोग कई बारी गुरु नालों वध के सियाणे बनने की कोशिश करते हैं कि सानू ज़्यादा पता है, सानू उही पता है जो सानू दिखाई दिंदा है, जो सानू दिखाई नहीं दिंदा उहदा थोड़ी सानू पता है। उन्होंने आख्या जी इनू कदे दान पुण्य करदिआं नहीं देखिया, कदे पूजा पाठ करदिआं नहीं देखिया, कदे इस नूं सिमरन साधना करदिआं नहीं देखिया, इनू कदे असीं संगत विच नहीं देखिया, इहो जिहे बंदे दे तुसीं घर जाओगे। गुरु साहब कहंदे हाँ इहदे ही घर जावांगे। सिखां ने कहा सतगुरु जी ऐसा ना करो, साडे घर ही आओ। सतगुरु ने कहा कि ये भाई जगता ऐसा सिख है, इसने कदे अपनी घर वाली तक नूं नहीं पता लगन दिता कि इहने किसी दा भला करिया। ये चोरी चोरी लोगों का भला कर आउंदा है, आप भावें तंगी कट लवे पर किसी गरीब नूं खाली नहीं अपनी दुकान तो मोड़दा। सतगुरु कहंदे ऐसे गुरसिख दे घर मैं जाना चाहांगा। इसलिए सतगुरु अगे जानदा है, साडा चंगा भी जानदा है, वो साडा मंदा भी जानदा है। क्योंकि लुक के असीं लोग की करते हैं, असीं चंगा तो करते हैं दुनिया नूं दिखा के, मंदा करते हैं असीं लुका के कि किसी नूं पता नहीं लगदा है। पर सतगुरु कहंदे प्रभु मेरे आगे सब विद जानी, मेरे प्रभु ने अगों सब जान लिया, उन्होंने सब पता है, वो सब जानदा है। लूक कमानो सोई तुम पेख्यो, सच्चे पातशाह असीं लोग लुक के कमाउंदे आ, माड़ा काम लुक के करदे ना। लूक कमानो सोई तुम पेख्यो, वाहिगुरू वो तू देख लिया, असीं लुक के जो माड़ा काम कीता वो तू देख लिया, पर देखण दे बावजूद भी असीं मूड़ मुग्ध मुकरानी, असीं मूर्ख मुकर गए कि असीं तां कीता ही नहीं। तुसीं बहुत दफ़ा अजकल तो ये देखना सौखा है कि CCTV कैमरे में बंदे की तस्वीर आ गई, वीडियो बन गई, वो वीडियो तो भी मुकर जाता, कहता जी मैं है ही नहीं, कोई होर होना है। साफ साफ चेहरा दिसदा भी हुंदा है, साफ साफ पता चल रहा कि फलाना बंदा है, वो मुकर जाता, वो कहता जी मैं है ही नहीं। यही गल सतगुरु कहंदे वाहिगुरू देखदा है पर बंदा फिर भी मुकर जाता है। हे वाहिगुरू लूक कमानो सोई तुम पेख्यो, जो असीं लुक के कमाया कि किसी नूं पता नहीं चलिया, सोई तुम पेख्यो तू वो देख लिया, पर असीं मूर्ख फिर मुकर गए, मूड़ मुग्ध मुकरानी, असीं मुकर गए कि असीं तां कीता ही नहीं। असीं बड़े चलाक लोग आ, मुकर जाने आ पैर पैर ते। आप कमाने कौले बंदे, जेड़े असीं आप माड़े कर्म कमाए ने उन्हां कर्मां करके असीं खुद बज जाते हैं। आप कमाने कौले बंदे, अपने कमाए हुए कर्मां करके बज गए असीं।
सानू किसे ने नहीं बन्निया है, सानू किसे ने नहीं, कोई नहीं बन सकता। असी अपने कमाए कर्म करके बजे हाँ। जे सानू किसे दा मोह है ना, मोह ने बन्निया होया, तो मोह साडा आप दा ही पैदा किया होया है। लोभ साडा आप दा ही है, क्रोध साडा आप दा ही है, काम वासना साडी आप दी होई है, हौमै अहंकार साडा आप दा ही है, किसी होर ने थोड़ी दिता है सानू कि ये कोई चीज़ है जिहड़ी किसी कोलों उधारी लै लवांगे। साडे आप दे ही कमाए हुए कर्मां ने सानू बन दिता, ते हुण इन्हां बंधनां तो मुक्त होना बड़ा औखा लगदा है। आप कमाने कौले बांधे फिर पाछै पछतानी, फिर बाद विच बंदा पछताउंदा है जदों अपने कर्म की सज़ा भुगतदा है। सतगुरु कहते फिर पिछे पछतावा रह जाता है। बंदा सोचता है कि जे मैं उत्थे आ काम ना करदा, मैं जरा जा लालच कर लिया, जे मैं उस दिन लालच ना करदा तो अज मैनू आ देखना देखना पैंदा। ऐसा हुंदा ना कि एक पल की वासना बंदे नू सारी जिंदगी का दुख दे जाती है। एक पल का लोभ सारी जिंदगी बंदा सिर झुका के तुरदा है, किसी सामने सिर चुकण जोगा नहीं रहिंदा। एक जरा जी गलती, एक जरा जी भुल, इस करके सतगुरु समझाउंदे, सतगुरु कहंदे भाई इस नूं जान लै। आप कमाने कौले बांधे फिर पाछै पछतानी, प्रभ मेरे आगे सब विद जानी। प्रभु मेरे ने अगे सारी विद जान ली। वो जान गया कि असी की दिखावा करते हैं तो की असी सच बोलते हैं, वो सब जानता है। भरम के मूसे तू राखत परदा, हे भरम विच फसे हुए आदमी तू रब दे कोलों पर्दा रखण दी कोशिश करदा है। पाछै जी की मानी ते तू अपने जी दी अपने मन दी मन के तू वाहिगुरू तो पर्दा रखदा है। सतगुरु कहंदे वो सब जानदा है, उहदे कोलों कुछ लुका नहीं सकते। इसलिए गुरु दे दर आके गुरु दे सामने अपने सारे औगणा तो पर्दा उठा देवो। जो भी असी चंगा कीता है मंदा कीता है सब पर्दा चुक देवो। दुनिया के सामने असी पर्दा चुकण तो डरते हैं, पर घट्टो घट गुरु के सामने तो चुक सकते हैं ना। जदों असी गुरु के सामने पर्दा चुक लैंदे आ तो गुरु साडा दुनिया के सामने पर्दा पा दिंदा है, वो साडी पत्त ढक लैंदा है। इस करके सतगुरु कहंदे वो साडी पत्त ढकदा है, वो सानू प्रेम का पटोला बख्श दिंदा है जिहदे नाल साडी पत्त ढकी जाती है। प्रेम पटोला तै शै दित्ता ढक्कण को पत्त मेरी है, मेरी पत्त ढकण लई। इस करके उहदे सामने कदे कुछ लुकाउण दा यतन ना करना, जैसे हो वैसे ही पेश होना। चंगियां मंदियां धर्मियां अधर्मियां पापियां पुन्नियां जो भी हाँ वैसा, कुछ भी एक अद्धा कण भी झूठ का ना होवे, पखंड का दिखावे का ना होवे, फिर असी प्रवान होंदे उहदे दर रहाओ। जित जित लाए तित तित लागे। सतगुरु कहंदे वाहिगुरू ने जिथे जिथे बंदियां नूं लाया ये सब उत्थे उत्थे लगे हुए ने। जित जित लाए तित तित लागे, क्या को करे प्राणी, कोई आदमी की कर सकता है। जिथे उन्हें लाया उत्थे लगे हैं तो फिर असीं की कर सकते हैं इस तो बाद। इसलिए बख्श लै हो पार ब्रह्म स्वामी, हे वाहिगुरू किरपा करके सानू बख्श लै। तो किरपा करके सानू रख लै, क्योंकि तू ही सानू इत्थे लाया होया इस कारज विच। बख्श लै हो पार ब्रह्म स्वामी, नानक सद कुर्बानी। नानक तेरे तो हमेशा कुर्बान जांदा है, सदके जांदा है। सतगुरु कहंदे जेड़ा उस वाहिगुरू दे दा सेवक हो गया, जिन्हें वाहिगुरू नूं अपना मालक जान लिया, अपने औगण अपने गुनाह
उस वाहिगुरू के सामने फरोल के रख दिते, वो परमात्मा अपने उस सेवक का आप रखवाला हो जाता है। वो वाहिगुरू आप अपने सेवक के पड़दे ढक दिंदा है अते अपने नाम की दात उसनूं बख्शदा है। सतगुरु अगे समझाउंदे ने, अपने सेवक की आपे रख है। वो अपने सेवक की पत्त आप रखदा है, वो आप अपने सेवक की लाज रखदा है। अपने सेवक की आपे रख है, आपे नाम जपावे, वो आप ही नाम जपाउंदा है। वो सानू आप ही ला लैंदा है अपने चरणों में। अज दा बचन है ना गुरु अर्जुन देव महाराज का, अज दा मुख वाक। सतगुरु इस मुख वाक में की कहते हैं? सतगुरु कहते, साध संगत जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी। तू सानू साध संगत विच ले आया, तू सानू कृपा करके अपने चरणों नाल जोड़ लिया, तू कृपा करके मेरे को बाणी अपनी पढ़ा ली, तू कृपा करके मेरे को कीर्तन कथा करा लिया, जां मैनू अपनी संगत में बिठा के कीर्तन कथा सुनने का अवसर बख्श दिता, तू बख्शिया। सतगुरु कहना, जित को लग है, जिस पासे बंदा लगा होया ये वाहिगुरू ने उत्थे लाया होया। तू सानू इत्थे ले आया तो असीं आ पहुंचे हाँ, असीं आ पहुंचे तेरे दर ते। इसलिए हे सच्चे पातशाह अपने सेवक की तू आप रखदा है, जेड़ा इस तरह ओदा हो गया वाहिगुरू आप ही उसनू अपने नाम की दात बख्श के अपने नाम नाल जोड़ लैंदा है। इसलिए उहदा सेवक होना पैंदा है। तुसीं सुखमनी साहिब पढ़दे हो, सुखमनी साहिब दे विच सतगुरु ने जिक्र किया सेवक का, ठाकुर का सेवक आग्ञाकारी। ये दो पदे जिहड़े ने ना इस अष्टपदी दे ध्यान नाल पढ़न वाले ने। पहले से विच सेवक का जिक्र किया कि सेवक वाहिगुरू का आग्ञाकारी, उहदी आग्ञा विच तुरदा है, उहदी आग्ञा तो बाहर नहीं चलदा। ते जिहड़ा उहदी आग्ञा विच तुरदा है, अगले पदे विच फिर परमात्मा उहदे ते रहमत करदा है। वो अपने सेवक की आप पत्त रखदा है, वो अपने सेवक का आप सहाई हो जाता है। इसलिए जदों असीं सेवक बनते हैं तां ही उहदी रहमत हासिल होंदी है, तां ही वो सानू अपना नाम आप कृपा करके बख्श दिंदा है। इसलिए सतगुरु कहते, अपने सेवक की आपे राखै, आपे नाम जपावै, जहाँ जहाँ काज किरत सेवक की। जिथे जिथे जहाँ जहाँ काज, जिथे जिथे कोई साडा काज है, जिथे जिथे साडी किरत है, तहाँ तहाँ उठता वै वो वाहिगुरू उत्थे उत्थे साडा सहाई हो जाता है, वो उत्थे उत्थे ही साडा मददगार बन जाता है। तुसीं किते भी होवो। सतगुरु की कहते हैं गुरु रामदास महाराज, सतगुरु कहते जिथे हर आराधी है तिथे हर मित सहाई। जिथे उस वाहिगुरू की आराधना करते हो वो वाहिगुरू उत्थे ही सहाई हो जाता है, वो उत्थे ही पहुँच जाता है। हर थां वो हर जरे जरे विच, हर कण कण विच समाया होया। इसलिए जिहड़ा उसनूं अपने अंग संग हमेशा जानदा है, सतगुरु कहते वो वाहिगुरू उहदे कारज सवार दिंदा है। इसलिए तो गुरु अमरदास महाराज ने सानू यही तो समझाया आनंद साहिब बाणी दे अंदर। सतगुरु कहते, हे मेरे मन तू वाहिगुरू नाल जुड़िया रहो, तू परमेश्वर नाल जुड़िया रहोगा तो वो तेरे अंगीकार होके तेरे कारज सवार देगा। ए मन मेरेया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। तू उहदे नाल जुड़िया रह, वो तेरे सब दुख खत्म कर देगा। अंगीकार हो करे तेरा कार सब सवारना, वो तेरे सारे कारज सवार देगा जब वो तेरे अंग संग हो जाएगा। वो साडे अंग संग तां होवेगा जदों साडा मन उहदे नाल होवेगा। सतगुरु कहते ना कि गुर मेरे संग सदा है नाले, गुरु वो वाहिगुरू हमेशा मेरे नाल है। जदों असीं उहनूं अपने नाल जाणदे हां, अपने मन नूं उहदे नाल जोड़ दिंदे हां, तदों वो साडा सहाई हुंदा है। सतगुरु कहते जहाँ जहाँ काज किरत सेवक की तहाँ तहाँ उठता वै।
ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕਾਜ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਔਗਣ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਸਭ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ, ਸਭ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਿਕਟੀ ਹੋਏ ਦਿਖਾਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਲਾ ਡਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਉਸ ਪਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ 5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, 5.25 ਫੁੱਟ ਦਾ ਕੱਦ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਾਥੀ, ਤੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਰਾ ਵੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਦਮੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਨਵਰ, ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ, ਹਾਥੀ, ਤੇ ਹਾਥੀ ਵੀ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੜਾਈ ਗਈ, ਮਸਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਥੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਿਕਟੀ ਹੋਏ ਦਿਖਾਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਨਿਕਟ ਹੋ ਕੇ, ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਡਰ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਫਿਕਰ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ, ਕੋਈ ਝੋਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਜਾਣਨਾ, ਹਰ ਵਕਤ, ਹਰ ਸਮੇਂ, ਚਾਹੇ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣਨਾ। ਚਾਹੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਜਾਣਨਾ। ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਜਾਣੋਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਸਭ ਵਿਘਨ ਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਜੋ ਕਹੈ ਠਾਕੁਰ ਪੈ ਸੇਵਕ। ਸੇਵਕ ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੋ ਕਹੈ ਠਾਕੁਰ ਪੈ ਸੇਵਕ, ਤਤਕਾਲ ਹੋਏ ਆਵੇ। ਉਹ ਤਤਕਾਲ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਵਕਤ। ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਹੋ ਸਹੀ, ਕੀ ਦਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜੋ ਕਹੈ ਠਾਕੁਰ ਪੈ ਸੇਵਕ। ਸੇਵਕ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਤਕਾਲ, ਉਹ ਤਤਕਾਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੇਵਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਦੌਲਤ, ਸ਼ੌਹਰਤ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਭ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਨਿਧਾਨ 10 ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਸਭ ਵਸਤੂਆਂ ਧਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸੇਵਕ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੋ, ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੋ, ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜੋ ਕਹੈ ਠਾਕੁਰ ਪੈ ਸੇਵਕ, ਤਤਕਾਲ ਹੋਏ ਆਵੈ। ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕਹਿ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਐਸੇ ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਜਿਹਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕਿਉਂ?
क्योंकि गुरु का सिख जिहड़ा गुरु के नेड़े रहन वाला, गुरु के चरणों नाल जुड़िया होया, गुरु उहदी गल मन लवेगा। इसे करके असी गुरु के चरणों में अरदासां गुरसिखां कोलों कराउंदे हां। सतगुरु कहंदे तिस सेवक कै हों बलिहारी, मैं उस सेवक तो बलिहार जांदा वां, मैं उहदे तो सदके जांदा वां जो अपने प्रभ भावै, जिहड़ा अपने प्रभु नूं भा गया, जिहड़ा गुरु नूं चंगा लग गया, जिहड़ा उहनूं भाउंदा है। ख्याल रखना कि कई बारी कोई गुरसिख किसी ते तरस खा लैंदा कि वाहिगुरू किरपा करके इनू औलाद दे दे। ऐसा होया गुरु अमरदास हाले गुरु नहीं सी बने, हाले वो सिख सन। गुरु अमरदास ने देखा, बाबे अमरदास ने, कि एक जोड़ा, उन्होंने बड़ी सेवा की गुरु अंगद साहब महाराज की, बड़ी सेवा की, पर उन्होंने घर औलाद कोई नहीं। तो बाबे अमरदास के मन में सुभाविक ही कि बड़े सेवा करने वाले ये गुरसिख ने, गुरु किरपा करे, कितना चंगा होवे जे गुरु इन्हों औलाद दे दे। सिर्फ ख्याल मन में पैदा होया, होर कुछ भी नहीं। गुरु अंगद साहब महाराज ने कुछ समय बाद उन्होंने अपने कोल बुलाया। सतगुरु ने आख्या कि अमरदास जी, जदों कोई दात प्राप्त हो जाए ना, तो इस तरह नहीं करीदा, वाहिगुरू की आग्या विच रहीदा, उहदी रज़ा विच रहीदा। उन्हें औलाद देनी है या नहीं देनी, ये उहदी मर्जी है, असीं उहदे हुक्म तो उल्ट नहीं जा सकते। तुहाडे मन अंदर उन्हां दे प्रति दया प्रेम भाव पैदा होया, इसलिए तुसीं ऐसा कहा, मन विच सोचिया विचारिया, पर वाहिगुरू की रज़ा तो उल्ट नहीं कदे जाना, उहदे भाणे तो कदे उल्ट नहीं जाना। इसलिए गुरु अमरदास महाराज जी की बाणी दे विच भाणे ते चलण दे बहुत सारे शब्द सानू पढ़न नूं मिलणगे कि उहदी रज़ा विच रहना, उहदी रज़ा विच रहना। अखीर भी जदों गुरु अमरदास महाराज ज्योति जो समाउण लगे, तो उस वेले भी उन्होंने जिहड़ा शब्द कहा उन्होंने बाबे सुंदर ने लिखिया। गुरु अमरदास ने कहा कि भगत सतगुर सिख कोई सोई जिस हर प्रभ भाणा भावे। जिन्हों वाहिगुरू का भाणा भाउंदा है, उही भगत, उही सतगुरु, उही सिख, उही गुरु का सखा संबंधी, जिन्हों गुरु का भाणा चंगा लगता है, वाहिगुरू का। इसलिए सतगुरु कहते ऐसे गुरसिख तो मैं बलिहार जाना वा जिहड़ा गुरु नूं भा गया। तिस सेवक कै हों बलिहारी, जो अपने प्रभ भावै, तिसकी सोए सुनी मन हरिया। सतगुरु कहते ओदी सोए, ओदी खबर सुन के मन हरिया, मन सुख ते आनंद नाल भर गया। तिसकी सोए सुनी मन हरिया, तिस नानक परसण आवे। नानक उहदे चरण परसदा है। सतगुरु कहते मैं उहदे चरण परसदा वां जिहड़ा उस वाहिगुरू दे नाल जुड़िया होया, जिहदी सोए, जिहदी खबर सुन के मन हरिया हो जाता है, जिहदे चरनां नाल जुड़ के मन नूं बड़ा सुकून सुख आनंद हासिल होंदा है। सतगुरु रहमत करे उहदे दरों सानू सारिआं नूं इह रब्बी दात हासिल होवे कि साडा मन उहदे चरनां नाल जुड़े, वासनावां तो मुक्ति मिले, अते जो मन विच ये ख्याल है कि दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ कि मैं की करदा, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਭੇਦ ਜਾਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।